In this video, we are going to discuss the calculation of density of a cubic crystal from its edge. For example, the edge of this cube is a picometer. Next is the number of atoms per unit cell, which is represented by Z. Now Z is 1 in case of simple cubic, 4 in case of face centered cubic lattice and 2 in case of body centered. तो Z होता है number of atoms present per unit cell. Now any of the solid is of any element, then the atomic mass of that element is capital M, and the general formula of density is mass upon volume. Now here volume is in case of cube, we can say is A cube, where A is the edge length which is measured in picometer. So we say the cube of A. Picometer is 10 raised to power minus 12 meter, but density is always in centimeter, so we take it is in centimeter, which is 10 raised to power minus 10 सेंटीमीटर. तो A इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ओवरऑल हो जाएगा A क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. मैक्सिमम स्टूडेंट इस पॉइंट पे गलती कर जाते हैं कि मीटर क्यूब लेते हैं, जबकि हमें क्या लेना है, ये सेंटीमीटर क्यूब. और पिकोमीटर मीटर क्यूब में मीटर में होता है -12, बट सेंटीमीटर के केस में इंटू 100 होते ही ये -10 हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. So mass of each unit cell is equal to number of atom in the unit. कितने नंबर ऑफ एटम है एक यूनिट सेल में, इनटू मास ऑफ ईच एटम. सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें सिंबल से, इट विल बी Z इंटू स्मॉल m. ठीक है, ये मास जो नॉर्मल मास होता है वो है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मास, इट इज़ द मास ऑफ ईच एटम. So as we know, small m is equal to capital M divided by the Avogadro number, that is n naught, which is 6.023 into 10 raised to power 23. So now we will put this value in this relation, that is density is equal to mass of each unit cell is Z into small m. Small m is capital M divided by n naught. एंड द वॉल्यूम अभी हमने लिखा था, दैट इज A क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. तो A क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. तो ये एक रिलेशन है जिसे हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ ईच एटम. अब इस केस में 3 टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. या तो आपको डेंसिटी पूछा होगा और ये सब वैल्यूज गिवन होंगी, और फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी इज गिवन टू यू, नंबर ऑफ पार्टिकल इज फिक्स, दैट इज 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23. mass of atom is given and you have to find out the edge length. या आपको edge length दी है और density find out करनी है. और we can say A की जगह, A और R का relation हमने different packing efficiency में किया था. R आपको given होगा, then you have to first find out the A, then you have to find out the density. So there are number of numericals which can be we can solve on this topic. So rho is equal to Z into M into A, where Z is 1 for simple, 2 for BCC and 4 for FCC. A is in picometer, already converted. अगर हम 10 to minus 30 already relation में ले रहे हैं, meaning it is already converted into picometer. And Avogadro number is the fix, that is 6.023 into 10 raised to power 23. So the first question is silver forms CCP lattice, that is cubic close packing, that is the FCC part. तो CCP का मतलब होता है FCC. Edge length of 408.6 picometer. Calculate the density of silver if mass is given. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, that is rho is equal to Z into M divided by A cube into 10 raised to power minus 30, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, विद एवोगैड्रो नंबर n नॉट. अब जो चीज़ गिवन है वो आप लिखिए. फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू 4 गिवन है, एटॉमिक मास आपको गिवन है, दैट इज 107.9 U. A इज गिवन टू यू, दैट इज 408.6. पिकोमीटर को ऑलरेडी हमने यहाँ चेंज कर लिया है. एंड एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23.
तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इतनी बड़ी फिगर्स को सॉल्व कैसे करें। तो आप इसमें राउंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 इंटू अप्रॉक्सीमेट काइंड ऑफ 108 हो जाएगा ये, ठीक है। 408.6 है, हम इसको 410 का होल क्यूब ले सकते हैं, ठीक है, इंटू 10⁻⁻30 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर ठीक आएगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस कम्स आउट टू बी 432। 4103 होल क्यूब का थ्राइस किया तो 6.8 इंटू 10⁻7 आएगा। -30 और 23 था तो -7 बचा, -7 एंड +7 ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे फिर अगेन अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया, 6.8 को 7 है, 7 6 का 42 है, तो इट विल बी 432 डिवाइडेड बाय 42. So after division answer comes out to be 10.2. और अगर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते तब यहाँ पे आंसर आता 10.5। तो पॉइंट में ही डिफरेंस है जो कि एग्जाम में इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि आप कैलकुलेशन को यहीं छोड़ दें, आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। Now the next question is the edge length of unit cell having a molecular mass 75 gram per mole is 5 angstrom. अब आपको edge length given है, mass given है, which crystallize in a cubic lattice, पर कौन सा lattice है वो नहीं पता। If density is 2 gram per centimeter cube, find the radius of that metal atom. तो क्वेश्चन में पूछा तो रेडियस गया है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द z, और ये CBSE सैम्पल पेपर 2017 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो मॉलिक्यूलर मास इज द 75, देन A is given to you 5 angstrom, that is 5 into 10⁻⁻10 meter. तो in case of centimeter it will be 10⁻⁻8 centimeter. तो एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो -10, अब मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 करेंगे तो -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन डेंसिटी इज गिवन टू यू, दैट इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड now you have to find out the radius, but for that you required z. So this is the relation, but now you have to find out the z. So in term of z, the relation will be rho into n naught, the density into a cube divided by m. So after putting the value, you will open it. 2 into 6.023 को हम 6 into 10⁻23 लिख सकते हैं, इग्नोर करेंगे जैसे मैंने पहले बताया, अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। 5 into 5 into 5 3 times and 8 3 24, that is 10⁻⁻24। अब नीचे है 75, तो ये कैंसिल हो सकता है, that is 15, then 5 3 the 15, then 3 2 the 6, 10⁻³ 24 कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा यहाँ पे, 10⁻⁻1। सो टू डू 4 into 5 into -1, सो आंसर आ जाएगा 20 into -1, दैट इज 2। तो z की वैल्यू 2 आई, मीनिंग दैट z इज BCC, बॉडी सेंटर क्यूब। सो अगेन आई एम टेलिंग कि अप्रॉक्सीमेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप मिनिमम से मिनिमम अप्रॉक्सीमेशन लगाएं सो दैट आपके लिए कैलकुलेशन यहाँ पे इजी हो जाए। नाउ इन द क्वेश्चन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेन पार्ट था रेडियस कैलकुलेट करना। तो रेडियस से पहले हमें नेचर ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए। अब रीजन ये था, आपने 3 टाइप के यूनिट सेल किए हुए हैं। सिंपल, दैट इज A इज इक्वल टू 2r, रेडियस और r का रिलेशन था। Then in case of face center, A is equal to 2√2r. Then in case of body center, A is equal to 4/√3r. ठीक है, तो अब ये एक लर्न करना है। लर्न करने की ट्रिक तो सिंपल ही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में A is equal to 2r है,
सीक्वेंस वैसे ही याद करेंगे, 1 इज द सिंपल, देन फेस सेंटर्ड, देन द बॉडी सेंटर्ड। सो 2, 2 एंड 4, 2, 2 एंड 4 लिखने का तरीका देखिए, 2 एंड 2, 2 को प्लस किया 4 आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट 1 इज 1 होता है, 1, 2 और 3 के केस में वो नीचे आएगा। ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताती हूँ, आप बिना लिखे साइड में जब भी एग्जाम हो साइड में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। हर एक केस में आपको a लिखना है, 2 हर केस में है, ठीक है, 2 + 2 4r हो जाएगा, और इस केस में √2 साथ में है और यहाँ पे √3 है। तो ये सीक्वेंस लर्न करेंगे, आपको अपने आप ही सिंपल, देन फेस सेंटर, देन BCC लर्न हो जाएगा। तो इट इज 2√2r, कोई फर्क नहीं है r आगे पीछे है तो ये रिलेशन आप लर्न करेंगे। रीजन मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आपको रेडियस गिवन होगा, आपको एज लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, या एज लेंथ गिवन है तो रेडियस होता। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बट इतनी कम कैलकुलेशन के लिए 3 मार्क्स क्यों देते हैं वो? रीजन आपको ये रिलेशन लर्न होना चाहिए। तो दैट इज a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2√2r इन केस ऑफ FCC, and a इज इक्वल टू 4/√3 इन केस ऑफ BCC. So for example, when z is equal to 2, that is if it is BCC, then relation of a and r is 4r/√3. So r की वैल्यू हो जाएगी a into √3 divided by 4. Now a here is 5 into 10⁻⁻8 √3 divided by 4. और कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है। फॉर √2 वैल्यू इज 1.414 एंड फॉर द √3 इट इज 1.732। तो अप्रॉक्सीमेशन में 1.4 एंड 1.7 आप ले सकते हैं। दिस इज फॉर √2 एंड दिस इज फॉर √3। तो √3 की वैल्यू आपने यहाँ पुट की, दैट इज 1.7, देन यू विल गेट द आंसर। सो आंसर इज 2.165 एंगस्ट्रॉम। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर था क्योंकि आपको एज लेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन थी, तो आप रेडियस भी एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज सिल्वर मेटल क्रिस्टलाइज विद FCC यूनिट सेल एंड द एज लेंथ इज 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डायरेक्टली आपको एज लेंथ गिवन है, तो साथ के साथ आप लिखते भी चलेंगे 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। अब हमें डायरेक्टली पहले तो z गिवन है, हमें a भी गिवन है और हमें r फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r इन केस ऑफ FCC? तो अभी अगेन बार बार वो लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 2r, a इज इक्वल टू 2√2r एंड इन केस ऑफ BCC इट इज 4/√3r। तो अब हमें ये रिलेशन यूज करना है, a गिवन है और r फाइंड आउट करना है। सो r विल बी a/2√2, a is given to you 3 × 10⁻⁻8, 2 into 1.414 and you will get the answer. So r comes out to be 1.06 into 10⁻⁻8 centimeter. तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड इज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। नाउ a आपके पास है, z आपके पास है, मोलर मास m given to you and Na also given to you. So now we will put the value in the relation z is, so जब हम इसको ओपन करेंगे 4 × 108 डिवाइडेड बाय 3 × 3 × 3, 8 3 24 -24, और ये कितना है 10⁻23, और इसको हम सिर्फ 6 ही लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यहाँ कर दिया तो सिर्फ -1 बचेगा। अब 3 3 9, 3 6 का 18, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है ये। अगेन 3 1 3, 3 2 6, अगेन 3 4 का 12, देन 2 3 6, 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा 8/30 इंटू 10⁻⁻1, ऊपर चला गया, दैट इज 80। दैट इज, अब अगर मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लिखूँ तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा ऊपर की टर्म्स में, और नीचे सिर्फ एक 3 × 10⁻⁻4 × 2, सॉरी 4 और 2 बचा था, ठीक है। 4 × 2, 3 × 10⁻⁻1, तो 4 to the 8 डिवाइडेड बाय
3 और 80 ऊपर आ गया। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।